ووجدک عائلا فاغنا، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، اس بات سے تم آگاہ نہیں ہو کہ وہ رسول جس کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ رسول جس کے سر کے اوپر ہم نے وما ینطق عن الہوا کا تاج مزین فرمایا ہے، انک لعلی خلق عظیم کی دستار جس کے سر پر ہم نے رکھی ہے، اس کے متعلق خالق ارشاد فرما رہا ہے اے میرا حبیب، ہم نے جب تجھے ضرورت مند پایا، جب ہم نے تجھے احتجاج پایا، تو کیا اس وقت ہم نے تجھے دولت مند نہیں کر دیا تھا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس شخصیت کی دولت ہے، یہ کس ہستی کی دولت ہے کہ کائنات میں دولت تقسیم کرنے والے رسول کو، جس کی دولت کی وجہ سے اس کا احسان جتلا رہا ہے، وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو کبھی کوئی احسان نہیں جتلایا، وہ کہہ رہا ہے ووجدک، جب ہم نے تجھے ضرورت مند بنا پایا تو ہم نے تجھے دولت عطا کی۔ یہ کس کی دولت ہے؟ جس کی دولت کے اوپر اللہ فخر کر رہا ہے، اور یہ کسی عام شخصیت کی دولت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے متعلق میں شیعہ تفاسیر کا ذکر کروں گا تو پھر یہ ہوگا کہ اپنی ہی تفاسیر کا ذکر کر دیا، بلکہ میں اس کے متعلق علامہ ابو الاعلی مودودی کی تفسیر تفہیم قرآن سے لے کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام دولت نہیں ہے، یہ دولت فقط اور فقط جناب ختیجۃ الکبریٰ کی دولت ہے۔ خالق کائنات جو ارشاد فرما رہے وجدک عائلا فاغنا، ہم نے تجھے ضرورت مند پایا، ہم نے تجھے جب حاجت مند پایا تو ہم نے تجھے دولت مند بنا دیا۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے ویسے کہ وہ رسول کہ دولت جس کی ٹھوکروں سے زمین سے خزانے جاری ہوتے ہیں، خدا اس کو احسان جتلا رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں شروع میں ہی یہ بات ضرور کہوں گا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی کوئی عام ذات گرامی نہیں ہے، یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ آج 10 رمضان المبارک جو کہ بی بی کا یوم رحلت ہے، یوم وفات ہے، یوم شہادت ہے، اس کے حوالے سے مجھے یہ بات ضرور کرنی چاہیے، اور میں یہ کرتے ہوئے فخر بھی محسوس کرتا ہوں، اور تمام عالم اسلام کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں تم تمام جو خواتین ہیں، خواتین کے دن جب مناتے ہو تو اس خاتون کا دن کیوں نہیں مناتے جس کی دولت پہ اسلام پروان چڑھتا رہا؟ اگر یہ میں جملہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ یقیناً سید الانبیاء کا حرم ہونا، رسول کی زوجہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے پر جو فخر کرے اسے ام المومنین کہتے ہیں، اور جس کے زوجہ ہونے پر خود رسول فخر کریں اسے ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اور جناب ختیجۃ الکبریٰ، بلکہ یہیں پہ ایک میں جملہ اور بھی کہوں گا کہ اسلام میں
खजूरों खाने के बाद फख्र करना ये और बात है, लेकिन अपनी सारी दौलत इस्लाम पर कुर्बान कर देना ये और बात है। जियो जियो। माशाअल्लाह। हैदरी सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। यकीनन इस बीबी की इतनी अजमत है, इस बीबी का इतना मकाम है कि जो मुसलमानों के सामने बयान ही नहीं किया जाता। बल्कि यहीं पे आपकी मोहब्बत को देख मैं एक जुमला और कहना चाहता हूं कि इस्लाम के दस्तरखान पर पलना और बात है, या इस्लाम के दस्तरखान से खाना खाकर फख्र करना और बात है, लेकिन अपने दस्तरखान पर इस्लाम को पालना ये खतीजतुल कुबरा का एजाज है। ये इस बीबी की अजमत है कि जिसके दस्तरखान पर इस्लाम परवान चढ़ता रहा। अच्छा, मैं एक और बड़ी सादा सी बात करना चाहता हूं कि अगर एक आम मुसलमान कोई मस्जिद तामीर करवा दे तो लोग कहते हैं जब तक वो मस्जिद बाकी रहे, जब तक वो अज़ाखाना बाकी रहे, जब तक वो अमल खैर बाकी रहे, उसका सवाब वो अमल आम नहीं शहजादी, बल्कि अरब की वो खातून जिसके मुकाबले में उस वक्त कायनात में और किसी की इतनी दौलत नहीं थी। और इस बीबी ने ये सब कुछ क्या किया, हमें ये देखना होगा। किसके ऊपर? सैयदुल अंबिया अक्सर इस बीबी को याद करते थे। और बल्कि रिवायात में है कि एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीबी की जिंदगी के बाद जनाब खतीजतुल कुबरा की तारीफ अपनी एक ज़ौजा के सामने कर रहे थे, तो वो ज़ौजा खुद रिवायत करती हैं कि उन्होंने जिस तरह ख़वातीन का होता है महसूस किया कि देखिए क्या वजह है कि अल्लाह ने, वो एक बूढ़ी खातून थी लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद आपको जवान नौखेज बीवियां अता, बूढ़ी खातून थी लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद आपको जवान नौखेज बीवियां अता फरमाई, लेकिन आप फिर भी उसी का जिक्र करते रहते हैं। सैयदुल अंबिया ने इरशाद फरमाया आपको पता जो नहीं है कि उसके मेरे ऊपर एहसानात कितने हैं। कहा खतीजतुल कुबरा कोई मेरी आम ज़ौजा नहीं है, वो कोई मेरी आम बीवी नहीं है, बल्कि खतीजतुल कुबरा उस हस्ती को कहा जाता है। सैयदुल अंबिया फरमा रहे हैं कि जब लोगों ने मुझे झुटलाया, खतीजतुल कुबरा ने उस वक़्त मेरी तस्दीक फरमाई। सैयदुल अंबिया इरशाद फरमा रहे हैं कि जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, वो मेरी तस्दीक कर रही थी। जिस वक़्त लोग मुझ पर ईमान नहीं ला रहे थे, उस वक़्त उन्होंने मेरे ऊपर ईमान लाया। और एक ऐसी सैयदुल अंबिया ना यहाँ पे बात इरशाद फरमाते हैं कि देखें बहुत सी और भी अज़वाज मेरी थी, लेकिन अल्लाह ने क़यामत तक के लिए जिसकी वजह से मेरी नस्ल को चलाया उसका नाम खतीजतुल कुबरा है। जो मेरी नस्ल की बका का जरिया है उसे खतीजतुल कुबरा कहते हैं। तो अजीज़ान गिरामी, इस वजह से इस बीबी का इतना अजीम मकाम है। अगर मैं ये कहूं तो ये बेजा न होगा कि बाकी जितनी रसूल की बीवियां हैं उन्हें हर में रसूल कहलवाने का हक है, लेकिन ये सिर्फ रफीक हयात रसूल नहीं है। जनाब खतीजतुल कुबरा सिर्फ रफीक हयात रसूल नहीं है, बल्कि ये रफीक मकसद बेसत रसूल है। ये बीबी जो है, यानी ये बीबी जनाब खतीजतुल कुबरा रफीक
बेसत मकसद रसूल है। और फिर अल्लाह अकबर, ये जुमला बेजा न होगा कि कितनी अजमत है इस बीबी की। अगर आम एक बंदा किसी के पास आ जाए, यानी एक आम बंदा हो, तो उसके सामने कोई साहिबे करामत आ जाए, साहिबे इज्जत आ जाए, साहिबे मर्तबत आ जाए, या यूं कहूं कि आम बंदे के सामने एक आलिम आ जाए, तो आम बंदा उस आलिम का एहतराम करता है। अगर आलिम के सामने एक फकीह आ जाए, वो उसका एहतराम करता है। एक फकीह के सामने अगर एक मुजतहिद आलम आ जाए, वो उसके एहतराम के लिए खड़ा हो जाता है। उसके सामने अगर कोई ताबी आ जाए, वो उसके एहतराम के लिए खड़ा हो जाता है। अगर ताबी के सामने कोई सहाबी आ जाए, वो उसके एहतराम के लिए खड़ा होता है। अगर सहाबी के सामने कोई नबी आ जाए, तो सहाबी नबी के एहतराम में खड़ा होता है। नबी के सामने रसूल आ जाए, तो नबी रसूल के एहतराम में खड़ा होता है। अगर आदम से लेकर ईसा तक एक कम 1,24,000 नबी बैठे हुए हों, वहां पे सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाए, तो सब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे। और अगर आदम से लेकर ईसा तक एक कम 1,24,000 नबी भी हों और मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, वहां पे जनाब फातिमा तो ज़हरा आ जाए, तो रसूल तक सब खड़े हो जाएंगे। अगर फातिमा भी मौजूद हो, खतीजतुल कुबरा आ जाए, तो वो भी खड़ी हो जाएंगी। कितनी अजमत है इस मखदूमा की, कितना मकाम है इस बीबी का। यानी सैयदुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं कि हर माँ की कदमों के नीचे औलाद की जन्नत है। हर औलाद की जन्नत उसके माँ के कदमों के नीचे है। लेकिन हमारी हजार जाने कुर्बान इस मलिकतुल अरब पर, इस खातून पर, इस उम्मुल मोमिनीन पर, इस उम्मुल मासूमीन पर, गौर है या नहीं, इस उम्मुल मासूमीन बीबी पर हमारी हजार जाने कुर्बान है कि यानी हर औलाद की जन्नत अपनी मां के कदमों में होती है। लेकिन खातून जन्नत जो बीबी कहलवाती है, जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, जो खातून जन्नत है, खातून जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में हो, उसे खतीजतुल कुबरा कहते हैं। खातून जन्नत की जन्नत अजीजान गिरामी आम बीबी नहीं है। उन 4 मस्तूरात में से कि जिनकी खुशखबरी रसूल ने दी, जिनमें जनाबे खतीजतुल कुबरा हैं, जनाबे आसिया ज़ौजे फिरऔन हैं, जनाबे मरियम हैं और सैयदतुन निसाइल आलमीन हैं। कोई आम मकाम नहीं है इस बीबी का। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं क्या वजह है, तमाम आलम इस्लाम को बिलअमूम और पाकिस्तान के मुसलमानों को बिलखुसूस इस बीबी के लिए मुअय्यन दिन पे प्रोग्राम होने चाहिए, इसलिए कि इस्लाम इस बीबी का मरहून मिन्नत है। जैसा मैंने पहले जुमला कहा है कि कयामत तक अगर आज़ानें हैं तो इसकी दौलत की वजह से, अगर नमाज है तो इसकी दौलत की वजह से, अगर रमजानुल मुबारक की ये रोजे हैं तो इस बीबी की दौलत की वजह से, अगर आज कोई तरावियां पढ़ रहा है तो इस बीबी की दौलत की वजह से, हज उम्रा कोई कर रहा है तो इस बीबी की दौलत की वजह से, अगर हम आज़ादारी कर रहे हैं तो इस बीबी की दौलत की वजह से। और फिर मैं जुमला कहना चाहता हूं कि अगर आज आसमान चहारों पर हजरत ईसा मौजूद हैं तो ईसाई फख्र करते हैं ना, लेकिन क्या शान है इस मखदूम कायनात की, इस बीबी की, जिसका बेटा ईसा कहलवाए उसे मरियम कहते हैं, कुरान में उसको बतूल कहा गया है। तो यानी वो बतूल कि जो बगैर शौहर के है और उसका बेटा आसमान पर मौजूद है, लेकिन जब तक खतीजा का आखिरी बेटा नहीं आ जाएगा उस वक्त तक ईसा नहीं आएगा। फिर हमारी हजार जाने कुर्बान कि मरियम का बेटा
جس کے آخری بیٹے کے پیچھے آ کر نماز پڑھے اسے ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عزیزان کرام، ناظرین کرام، ہم سب کا حق بنتا ہے اس بی بی کے احسان جس کے دولت کے اوپر اللہ فخر کر رہا ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور جملہ بھی کر کہوں تو وہ بے جا نہ ہوگا. نقل کفر کفر نہ باشد، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. بعض ناعاقبت اندیشوں نے تاریخ میں اس طرح کی بات لکھ دی نعوذ باللہ کہ جی بی بی نے کلمہ پہلے نہیں پڑھا تھا. ارے اگر نقل کفر کفر نہ باشد، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بی بی جو ہیں، تھوڑا میں اس کو اور وضاحت کر دوں کہ اس بی بی نے اپنا سارا مال نکاح کے وقت رسول کی خدمت میں پیش کیا یا جب کلمہ پڑھا تب پیش کیا. اس لیے کہ اعلان رسالت رسول نے فرمایا ہے 40 سال کی زہری زندگی میں. توجہ ہے یا نہیں؟ 40 سال کی زہری زندگی میں رسول نے اعلان رسالت فرمایا، لیکن اس بی بی کے ساتھ رسول کا عقد ہوا ہے جب رسول کی زہری زندگی 25 سال تھی. تو صاحبان تاریخ درج فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول کے ساتھ عقد ہوا نا اس بی بی کا، تو اپنی دہلیز سے قدم باہر نکالا تو کتنے 100 کنیزوں کو آزاد کیا، اور وہاں سے چل کر دروازے جناب ابو طالب پہ آنے تک اس بی بی نے 400 کنیزیں آزاد کی. میرے ناظرین اور میرے سامعین اگر متوجہ ہوں تو میں جملے کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس بی بی نے اپنے دروازے سے لے کر رسول کے دروازے تک نہیں، ابو طالب کے دروازے تک، غور ہے یا نہیں، 400 کنیزوں کو آزاد کیا. سوال کرنے والوں نے کسی نے کہا کہ بی بی اتنی زیادہ آپ نے کنیزیں آزاد کر دی، اتنے زیادہ غلام آپ کو آزاد کر دیے. سنہری حروف سے لکھنے والے جملہ ہے بی بی کا. بی بی فرماتی ہیں کہ جو خود کنیز مصطفیٰ بن رہی ہو، اور ہے یا نہیں، جو خود کنیز مصطفیٰ بن رہی ہے اب اسے دنیا کی کنیزوں کی کیا ضرورت ہے. تو اس بی بی نے اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت اسلام پر قربان کر دی. ایک دن سید الانبیاء کو بی بی نے پریشان دیکھا. پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، لوگ ہیں بھوکوں مر رہے ہیں، قحط بھی ہے، کوئی آنا نہیں چاہتا. بی بی کہتی ہے پریشان نہ ہو، پورے عرب میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو آپ کی کنیز ختیجہ کا مقروض نہ ہو. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو آپ کی کنیز کا مقروض نہ ہو. بی بی کہتی ہیں کہ اعلان کر دو، کل بیت اللہ کے اندر ایک پردہ لگا دو، ایک طرف میں بیٹھتی ہوں، ایک طرف ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دو، اور دوسری طرف میں اپنی مقروضوں کی فہرست آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں، اور میرے مقروضوں کو بٹھا دو. اور مقروضوں کو بٹھانے کے بعد یہ اعلان کر دو میری طرف سے کہ ملکۃ العرب اعلان کر رہی ہے کہ آؤ اللہ کی توحید کا اور مصطفیٰ کی رسالت کا کلمہ پڑھتے جاؤ، اور قرض کے معاف ہونے کی رسید میں ختیجۃ الکبریٰ دیتی جاؤں گی. تو اس لیے جتنے بھی اور کہاں تک اس بی بی کے میں فضائل بیان کروں. اس بی بی کے فضائل گھنٹوں نہیں عشروں پڑھے جا سکتے ہیں، پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے اس بی بی کے اوپر. یعنی اس بی بی کے اتنے احسانات ہیں. لیکن یہی بی بی جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا شیب ابی طالب میں 3 سال تک، 2.5 سے 3 سال تک یہی بی بی کہ جس کے اونٹ سونے کے کیلوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے، گھوڑے باندھے جاتے تھے، اس بی بی نے سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا.
शेब अबी तालिब में फाके अरब की कुरैश की औरतें आकर बीबी को तंजन ताने देती थी कि देख दौलत तेरे पास थी, हीरे तेरे पास थे, जवाहरात तेरे पास थे, मालो दौलत तेरे पास था, कनीजें तेरे पास थी, गुलाम तेरे पास थे, न तेरा माल रहा, न तेरी दौलत रही, न तेरे हीरे रहे, न जवाहरात रहे, न तेरे ऊंट रहे, न तेरे घोड़े रहे, न तेरे गुलाम रहे, न तेरी कनीजें रही। इस अब्दुल्ला के यतीम मोहम्मद के साथ अक्द करके तूने क्या किया? बीबी फरमाती हैं कि मुझे ऐसे न कहो, एक मरतबा फिर सवाल करो। उन्होंने कम कह रही हैं कि तेरे पास माल था, दौलत थी, हीरे थे, जवाहरात थे, सोना था, चांदी थी, कनीजें थी, गुलाम थी, न माल रहा, न दौलत रही, न हीरे रहे, न जवाहरात रहे, न सोना रहा, न चांदी रही, न ही तेरे पास कनीजें रही, न गुलाम रहे, क्या तूने? बीवी फरमाती हैं तुम्हें पता ही नहीं, बेशक मेरी दौलत गई, मेरा सोना गया, मेरी चांदी गई, मेरे हीरे गए, मेरे जवाहरात गए, मेरे कनीजें गई, मेरा गुलाम गए, सब कुछ देने के बाद मोहम्मद को अपना सरताज बना लिया और ज़हरा जैसी बेटी को अपनी गोद में लेकर 12 इमामों की मां बन गई हूं। इससे बढ़ के मुझे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, इसके बाद मुझे और क्या चाहिए? यही बीबी शेब अबी तालिब में 2.5 से 3 साल तक फाका में रही और इतने फाके की रिवायात में है कि जिस्म के ऊपर जिल्द के नीचे से हड्डियां नजर आती थी और दरख्त की रिवायात मिलता है कि पत्ते और छाल तक खाई जाती थी। और यहीं पे रिवायात में मिलता है कि बीबी बीमार हुई, बल्कि एक रिवायत तो यहाँ यूं भी मिलती है कि जब पत्ते यानी दरख्तों की छाल खाते थे ना, तो एक यानी दरख्त था, ऐसे बदबख्त लोग भी थे कि उन्होंने दरख्तों के अंदर वहाँ पे उनकी जड़ों में जहर मिला दिया था। तो जहरीली एक जड़ जब तनावुल की गई तो जहर का असर हुआ और बीबी यहीं पे बीमार हुई। और बीमार होने के बाद शेब अबी तालिब से जब मदीना में आई तो उसी बीमारी की वजह से बीबी इस दुनिया से जब जाने लगी तो सैयदुल अंबिया को करीब बुलाया। सैयदुल अंबिया करीब आके कहते हैं कि खतीजा, तूने सब कुछ मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया, अब तेरा आखिरी वक्त है, मैं चाहता हूँ कि कुछ मुझसे मांग। बीबी कहती हैं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रसूल कहते हैं नहीं, तेरे बहुत एहसानात हैं। रिवायात में मिलता है कि बीबी ने कहा कि अगर आप हुक्म देते हैं तो फिर मांगने की सूरत में चंद वसीयतें करना चाहती हूँ। सबसे पहले बीबी ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अगर पूरी ज़िंदगी में मुझसे कोई गलती या कोताही हो तो मुआफ़ कर देना। कायनात का रसूल रो के कहता है खतीजा ये कैसे कह रही है कि तू और गलती? हाँ अलबत्ता तू मलिकतुल अरब थी, मेरे घर में आकर तूने फाके काटे और तूने आकर मेरे ऊपर सारी दौलत कुर्बान की। किसी किस्म की कमी रह गई हो तो मैं मोहम्मद तेरे साथ वादा करता हूँ कि कयामत के दिन इसका बदला मैं चुका दूंगा। बीबी कहती हैं, रसूल कहते नहीं मैं चाहता हूँ कुछ मांग। जब कहा ना मांग तो बीबी कहती हैं फिर एक ही सवाल करती हूँ और सवाल की सूरत में वसीयत करती हूँ कि मेरे बाद मेरी 5 साल की बेटी है, मेरे बाद इसे न कोई झिड़क दे और न कोई इसे रुलाए। आज़ादारो, आपने सुना और आपकी आंखों से गिरिया जारी हो गया और नाजरीन भी यकीनन गिरिया कर रहे हैं। जैसे आपकी आंखों से आंसू जारी हुए, कायनात के रसूल ने रोना शुरू किया। और मैं कहूँगा रसूल ने कहा होगा, फरमाया होगा कि खतीजा तेरे साथ वादा करता हूँ मेरी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में तो मैं ज़हरा को नहीं रोने दूंगा। और शायद यही वजह थी कि रसूल ने जिंदगी में तो ज़हरा को नहीं रोने दिया, लेकिन जिंदगी के बाद
यही सैयदा खतीजा की बेटी अपने बाबे की कब्र तक आते हुए कई मरतबा बैठती थी, कई मरतबा उठती थी, और आखिरी मरतबा हाथ रख के थी सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सिरना लैया लैया, बाबा तेरे बाद मुझ ज़हरा पे इतनी मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती तो स्याह रातों में तब्दील हो जाते। अजरुकुम अल्लाह। बस आज़ादारो, जिंदगी में तो रसूल ने कोशिश की कि ज़हरा न रोए, लेकिन जब जनाब खतीजा वसीयत फरमा रही थी तो ज़हरी सिन था मेरी बीबी जनाब फातिमा का 5 साल का। आज़ादारो, जिसकी 5 साल की बच्ची की माँ दुनिया से जा रही हो तो सब लोग दिलासे देते हैं ना। जब रसूल ने जनाब खतीजा को दफन करके आए, ज़हरा को रोते देखा, अपनी बेटी को गोद में लिया, गोद में लेने के बाद दिलासा दिया, कहा बेटी क्यों परेशान होती है, तेरा बाबा जो मौजूद है वहां चली गई। मैं कहूंगा बीबी जनाब फातिमा तो ज़हरा से, बीबी आप फिर भी खुशकिस्मत तो है ना, आपकी वालदा के जाने के बाद, यतीमी के बाद आपको दिलासे देने के लिए मोहम्मद जैसा बाप है, लेकिन ये ही मुकद्दर है आपकी पोती सकीना का कि उसका भी सिन 4.5 साल या 4 साल था, लेकिन जब उसका बाबा दुनिया से गया, अज़ादारो बाबा के लाशे पे रो रही थी। अज़ादारो तो कोई प्यार से उठाने वाला नहीं था, कोई दिलासा देने वाला नहीं था। अज़ादारो शिमर के हाथ में ताजियाना था, ताजियाना लेकर कहता था तू खुद उठेगी या मैं उठाऊं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारो आखिरी जुमले, इस बीबी को रसूल ने गुस्ल दिया, कफन दिया, तजहीज हो गई, तकफीन हो गई। अज़ादारो दफन करने के बाद मेरे छठे इमाम की रिवायत है कि जब 12वां इमाम दुनिया में तशरीफ लाएगा ना, जिसे रजत का हम अकीदा कहते हैं, उस वक्त जब इमाम कुर्सी लगाएंगे तो जनाब खतीजतुल कुबरा भी अपना मुकदमा लेकर वहां पर पेश होंगी। छठे इमाम की रिवायत है, इमाम फरमाते हैं कि बीबी जब आएगी तो आम हालत में ये नहीं आएगी, रसूल खुदा भी रो रहे होंगे, खतीजा की गोद में अज़ादारो एक शहीद होगा, उस शहीद को देखकर अहले महशर रोएंगे। बीबी पूछेगी कि मुझे बताओ इस मेरे बेटे, मेरे इस बच्चे मोहसिन का कसूर क्या था। अज़ादारो छठे इमाम से किसी ने पूछा था कि खतीजतुल कुबरा मोहसिन को गोद में लेकर क्यों आएंगी, कहा इसलिए कि ये मोहसिन की दादी है ना, नानी है ना जनाबे मोहसिन की, शहीद हुई जनाबे मोहसिन। फरमाया ये जनाबे, और छठे साहिल ने पूछा कि इमाम से कि क्यों लेकर इसको आएंगी, इसके अलावा और क्यों नहीं लेकर आएंगी। मेरे इमाम फरमाते हैं, फरमाया जनाबे मोहसिन को अगर लेकर आए तो फातिमा तो ज़हरा लेकर आए। रोने वालों, मेरा छठा इमाम फरमाता है ऐसे बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि खतीजा की गोद में मोहसिन होंगे और ज़हरा की गोद भी खाली नहीं है। अगर खाली होती तो मोहसिन होता है। जनाबे खतीजतुल कुबरा की गोद में मोहसिन होंगे और जनाबे ज़हरा की गोद में 6 महीने का अली असगर होगा और गोद में लेकर कहेंगी